The first point I said, democracy and non-democracy difference. In democracy, the government is formed by the definition of democracy says a government of the people, for the people, and by the people. Whereas non-democratic regimes are autocracy or dictatorship, military, or monarchy. In democracy, the citizens have the rights like universal adult franchise. In non democracy, there are no rights provided to the citizens. In democracy, the common people are called as citizens, whereas in non democracy, they are called as subjects. In democracy, a set of people rule, frame the laws, and the government is run through the law. Non democracy is based on different aspects. So it is one man or only few people who have the rights to make the law. तो पहला हमारा जो क्वेश्चन आता वो आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी. सेकेंडली व्हाई डेमोक्रेसी. नाउ अब हमने पहले में पढ़ लिया कि ये है, तो व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. This question may come for 2 marks or 3 marks, not more than that. तो सबसे पहले, as I said, it promotes equality. It provides universal adult franchise. It provides many fundamental rights. Yeah, Pranjal. Then, secondly, it increases the dignity of the citizens. The dignity is provided through the fundamental laws. Then in India, we have directive principles of state policy. Third is, it also, because many people are involved. So what happens is, democracy involves a better decision making. And last but not the least is, when people do not work for them. अभी जैसे results आए of Goa, Punjab, Uttar Pradesh, we could see those parties which did not do anything, जिस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं था, they lost. अब हम नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इन डेमोक्रेसी वी हैव इलेक्शंस, वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट से आई एम डेमोक्रेटिक. जब तक आपके पास सामने कंपटीशन के लिए दूसरी पार्टी नहीं होगी ना, आपका जो पहला पार्टी है दैट वुड नॉट वर्क. सो इट इज बेस्ड ऑन so many rights, duties, law which have been provided by the constitution of any country. तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला आता है कि डेमोक्रेसी के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. मीन्स अगर हम पॉलिटिकली अगर हम डेमोक्रेसी को एनालाइज करते हैं तो व्हाट आर इट्स रीजन. सेकेंडली, इफ इट इज सोशल, देन व्हाट आर इकोनॉमिक, तो क्या है. In some of the schools this question had come, and the students did not mention all the points. अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में बेटा 3 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब मैं पहला पॉइंट बता रही हूँ. डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. यही क्वेश्चन जो है अलग अलग होकर भी आ सकता है. Democracy produces legitimate government. Democracy produces responsive government. Democracy produces transparent and accountable government. ये अलग अलग 3 मार्क्स में भी आ सकता है या एक ही बार में 5 मार्क्स में भी आ सकता है. तो इसका मतलब आपको वो 3 जो पॉइंट्स हैं, दैट इज आपका अकाउंटेबल, सेकेंड रिस्पॉन्सिव एंड थर्ड आपका लेजिटिमेट, इनको आपने एक्सप्लेन करना है. तो नाउ इफ इट इज से अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या हो जाता है, इट इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा, पारदर्शी. आप लोग अपने उसमें पढ़ते हो इन फिजिक्स दैट यू कैन सी ऑन द अदर साइड. तो डेमोक्रेसी के अंदर यू हैव सर्टेन प्रोसीजर्स,
and normally these procedures are known to everyone. हमें पता है election is one procedure जो कि हमें पता है कि that analyzes the, it is a test of the political parties. So there are certain procedures which they have to follow. कोई भी रूल जो है that cannot be passed anonymously. Okay, हाँ, unless and until there is some emergency, जैसे लॉकडाउन लगा था 22 मार्च 2019, तो that was something which was important, but otherwise all the decisions have to be taken after debates. Secondly, the people, जो हम लोग हैं, common citizens हैं, we have the right, सबसे पहला है right to vote. यानी कि अगर आपने काम नहीं किया, हमें नहीं बताया what is the procedure, तो अगली बार आप गए. Secondly, we also have RTI, right to information. ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये पहले नहीं था इंडिया के अंदर. देन देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन राजस्थान, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू आस्क द अदर पर्सन कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट आपने ये पैसा या फिर ये प्रोसीजर क्यों किया. एंड दिस राइट टू इंफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इवन इन द स्कूल्स. तो ये आरटीआई जो है, इफ द गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है तो वी कैन यूज दिस आरटीआई. तो दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि झूठ बोलने का तो कोई बन ही नहीं सकता. सेकेंडली, आपका इसी के अंदर आ जाता है दैट इट इज अकाउंटेबल, बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, अकाउंटेबल मतलब क्या है, जवाबदारी. इफ द गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, then the people have the right to deny those political parties or those leaders. They need to. तो इसीलिए आपका जो है गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट. बट मेनी पीपल से दैट इन डेमोक्रेसी, ये पेपर में क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था, इन डेमोक्रेसी थिंग्स बिकम वेरी डिलेड, ये पेपर में आया था. तो इसका आंसर क्या है, द थिंग्स बिकम डिलेड बिकॉज वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स, और जहां आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे वहां टाइम लगेगा. देन देर आर नेगोशिएशंस, डिबेट्स, उसके लिए भी आपका टाइम लगता है. So many people have to be consulted before making any decision. That is why it takes time. It is delayed. हाँ, इसका नुकसान होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा देर करना जो होता, that may be wrong. But when it is for the welfare of the people, then we have to think and use the brain. तो इसके अंदर आपको लिखना है दैट इट इज, मतलब कि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स डिले बिकॉज ऑफ द डेलिबरेशंस एंड नेगोशिएशंस. नेक्स्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिव? मीन्स टाइम टू टाइम वी नीड सर्टेन डिमांड्स. अब ये डिमांड वो नहीं है हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए. द डिमांड्स आर इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स. लाइक हम सबको एक राइट है, राइट टू वर्क. एंड अगर गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज, द एम्प्लॉयमेंट, देन द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव. That it is government which has to take steps, it has to establish industries. जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था नरेगा. नरेगा कम्स अंडर राइट टू वर्क, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी जिंदगी को गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. सो द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड टू दीज डिमांड्स. पीछे आपके जो है फॉर एग्जाम्पल last year, because of the pandemic, there were so many problems. Many people had lost their employment, their jobs, their business.
तो तब लोगों ने जो है इनडायरेक्टली थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोटेस्ट, अलग अलग तरीकों से लोगों ने कहा कि दे नीड सम मेजरमेंट, दे नीड सम रिलीफ। और अगर गवर्नमेंट बजट में वो सब चीजें नहीं लाती है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम द गवर्नमेंट मे नॉट बी देयर इन द। नेक्स्ट इज, it is the duty of the government also to remove corruption. So that is why the government is responsive to the demands. And if it is not responsive, then the transparency is that we can reject them. ये तो हमारा पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है, सॉरी सेकंड पॉइंट था, अब थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट। बेटा देयर इज अ डिफरेंस। लेजिटिमेट का मतलब होता है समथिंग विच इज मेड यूजिंग द लॉ, विच इज लीगल, विच इज एक्सेप्टेबल। लेजिटिमेट का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल बाय पीपल। जैसे अगर कोई इंसान काला बाजारी करेगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एज मतलब कि इलीगल। तो लेजिटिमेट इज समथिंग विच इज लॉफुल। तो व्हाई गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज लॉफुल? बिकॉज गवर्नमेंट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्शंस, यानी कि एक लॉ। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस इंस्ट्रक्शन दैट the government should be framed only through elections. Election एक legal formality है, तो उस legal formality से बनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है वो the person can become the prime minister of India or the chief minister of a state, ऐसा नहीं होता है। So that is why it is called as legitimate. तो in the political arena we can say that government democracy is better than non-democracy, क्योंकि in the non-democracy you don't have all these things. Anyone can rule because the rule passes from one to another, and in dictatorship there are strict measures. The people don't have any civil liberties. जैसे हमें लिबर्टीज है वो सारी लिबर्टीज आपकी नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम इकोनॉमिकली बोले तो इट इज स्लाइटली लैगिंग। वी कैन नॉट से इट इज 100% लैगिंग, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द डेटास दैट वी हैव गॉट, नॉन डेमोक्रेसी 4.05% आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, whereas in democratic regimes, especially in the poor countries, it is around 3.95. And this is because why ये पेपर में आता है कि why डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। The reason is all the law has to go through a procedure, and when we follow the procedure it takes delay. Sometimes the government may not look into the economic sphere, क्योंकि उनको जो है पॉलिटिकल भी देखना है, सोशल भी देखना है, और भी देखना है, तो इस वजह से क्या होता है समटाइम्स इकोनॉमिक लैगिंग हो जाती है। So it is said that dictatorship, especially countries like Pakistan, ये पेपर में आपकी बुक में है, and बांग्लादेश जो है they have preferred dictatorship over democracy. This is because उनको लगता है कि इन डिक्टेटरशिप जो है दैट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। अब आप सोचो श्रीलंका कितना छोटा है। यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल्स, यू कैन राइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स। श्रीलंका इज अ स्मॉल आइलैंड, येट they are better than India, they are better than Pakistan, they are better than Bhutan. Why? The reason is they have invested more into health and education.
So it depends upon the quality of population, the global situation and उस country का economic priority क्या रहा. So it is not based on democracy or non-democracy, it is based on the people's perception. Third is, it has of course, मतलब कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करती है. हाउ? What happens is, before independence in India, the wealth, land, they all were concentrated with few people. The government is trying to reduce these inequalities. लेकिन फिर भी हमारे, अगर हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस को बहुत थरोली पढ़ते हैं, तो देन वी फाइंड कि बहुत जगहों पर द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक द स्टेप्स टू रिड्यूस दीज इनइक्वालिटीज, क्योंकि वोट का हमेशा डर लगता है. अगर हम इस सेक्शन को नाराज करेंगे तो हमारे वोट्स चले जाएंगे. तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट दे डू नॉट टेक इनफ स्टेप्स. दैट इज व्हाई वो पिक्चर बनी हुई है ना आपकी बुक में, एक बड़ा सा आदमी ऊपर और नीचे पतला सा. तो there is disparity between the rich and poor in the economic sphere. Yet we can say that this is very, very less. Now the third comes, democracy provides social diversity. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी के अंदर आता है, इट एंश्योर्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन. तो सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वी आर मेल, वी आर फीमेल, वी आर रिच, वी आर पुअर. सोशल का मतलब हो जाता है आपका वी आर डिफरेंस, हमारे डिफरेंसेस होते हैं. मे बी एक पर्टिकुलर थिंग में आई एंड प्रथम में अग्री, लेकिन दूसरे में वी मे नॉट अग्री. विद इन योर क्लास ऑल्सो यू मे बी हैविंग, आपने क्लास के अंदर देखा होगा, क्लास में जब आप लोग बैठते हो तो बच्चे तो सारे एक ही हैं, लेकिन फिर भी एक ग्रुप होता है जो पढ़ने लिखने वाला होता है, वो चोरी चुप 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 करते हैं. एक ग्रुप ऐसा होता है जो बहुत शैतान होता है, पीछे बैठते हैं. तो क्या ये लोग बिल्कुल अलग हैं? नो. कुछ चीजों में अलग होंगे, लेकिन कुछ चीजों में इनके भी कॉमन फैक्टर्स होंगे. लाइक जो पढ़ने वाला बच्चा, उसमें भी एक बच्चा होगा जिसको क्रिकेट अच्छा लगता होगा, जो ना पढ़ने वाला बच्चा उसको भी अच्छा लगता होगा क्रिकेट. तो वी हैव differences in social arena, that is like male and female. Divisions हमारे यहाँ पर जैसे caste का division है, then color, religion, बहुत अलग अलग हम लोग जो है करते हैं. तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? the rules are set to tackle these social differences. like women empowerment के लिए they are giving, इस साल तो मैंने देखा they are giving so many schemes जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, उनको रिजर्वेशन पॉलिसीज दी हैं. एंड इन दिस मैनर दे आर ट्राइंग टू रिमूव दीज सोशल डिफरेंसेस. हमारे यहाँ पर क्या है? सेक्युलरिज्म. all the religion are given equal status. Reservation for the candidates while they are contesting the elections to provide them fair chance in government. Then next is, democracy ensures dignity and freedom to the citizens. कैसे? तो dignity to the women and caste inequalities, ये दो आपके इसके अंदर स्पेसिफिकली आएंगे. सोशल डाइवर्सिटी में आपका सारा आ जाएगा, इसके अंदर स्पेसिफिकली डिग्निटी एंड फ्रीडम. मतलब एक तो वी हैव फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स. whether you are a male or a female, anyone above 18 years has the right to vote. सबसे पहले तो वो जो डिफरेंस है उसको हटा दिया जाता है. वेदर यू आर पुअर और रिच, यू हैव द राइट टू वोट, यू हैव द राइट टू वर्क, यू आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. सो दीज फंडामेंटल हमारे जो हम लोगों को राइट्स मिले हैं, दैट एंश्योर्स दैट वी आर
equally treated. For women also, they are trying to. I cannot say as a woman, I can say that the government, कोई भी government जो है इतना नहीं कर पाया है to ensure fair representation of women. Yet there is a vast difference between the bygone era and now. In the government also, we have many people on the topmost positions, even in the field of education, even in the field of science, we have women. So it is trying to ensure through different schemes. Now, caste inequalities. I have already discussed it with you. हमारे यहाँ पर due to the historical problems, हमारे यहाँ the caste differences have been there. And इसकी वजह से हुआ क्या है? Some people in the underprivileged caste have not been getting fair representation in education, health and politics. उसके लिए गवर्नमेंट ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो इंश्योर करता है कि किसी के भी आप राइट्स को नहीं मारो. By giving them representation of 84 seats and 47 seats in the constituency, it ensures that they are equally treated. By providing 27% of reservation in the education, in the job, they are given the equality. So the government is trying to remove it, but अगर हम overall देखें तो नॉन गवर्नमेंट के अंदर यू विल नॉट बी फाइंडिंग दिस मच ऑफ, आप एक एक चीज पर आप जो हो नहीं देख सकते, यू विल नॉट बी फाइंडिंग. बट डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी इज अ सक्सेस? आपके पेपर में आ सकता है. यस, इट इज अ सक्सेस. हाउ? इफ यू लुक इनटू द survey, if you look into the people in 1900, only some countries were democratic, like New Zealand, US. Then India ने जो है adopt किया था right from the very beginning. लेकिन बहुत सारी countries ने, like Nepal. Then there are many countries in the other parts of world, those who had fought for democracy, like South Africa. So they all have fought. अगर डेमोक्रेसी अच्छा नहीं होता तो लोग नॉन डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी में आना पसंद नहीं करते. भूटान, which is right now also under monarchy, लेकिन the government, वहां का जो राजा है, he himself wants that the government should adopt a multi-party system. Then Maldives, earlier it was under Sultanate, but right now they are having a republic party. So this shows all over the world people want to shift to democracy because democracy is better. It has reduced the conflicts. It has given the people the dignity of citizens. It is giving opportunities. Now इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो ऐसा आता है कि इस वाले चैप्टर में that the testimony of democracy is that more and more people want it. तो what is means of testimony? Testimony का मतलब होता है evidence. And it is evident, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, भूटान, नेपाल, आपका मालदीव्स, this is evident that all over the world people want to shift over. Secondly, within democracy also, मतलब हम डेमोक्रेसी के अंदर भी अगर हम लोग रह रहे हैं तो ये दिख रहा है that people are demanding. लोग अब अवेयर हो रहे हैं. If I look into 1947, because मैं political science पढ़ाती हूँ तो I know we have the data of all the years that how the people participated in the elections.
तो अगर मैं 1950 में जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, द फर्स्ट इलेक्शंस, उसमें द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस, मतलब टू कास्ट देयर वोट्स, वाज ओनली 40%। लेकिन अगर आप अभी का देखोगे तो इट इज अराउंड 60 to 80%, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, it is something around 60 to 80%. So this means more participation is there. Now people are participating through social medias, people are participating through political parties, following them. तो इससे पता लगता है कि people are satisfied with democracy. They don't want to go to non-democracy. But whether democracy can succeed or not, this depends upon the vigilance of citizens. ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है लास्ट. This particular question can come for 2 marks. Means a vigilant citizens can promote democracy. Vigilant का मतलब क्या होता है? अब हम में से जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब जो हो, you all are studying political science. But what happens sadly is after some time बॉयज के लिए पॉलिटिकल साइंसेस, पॉलिटिक्स जो होता है दैट इज ओनली द न्यूज़पेपर एंड लुकिंग एट द न्यूज. एंड फॉर द गर्ल्स जिन्होंने ह्यूमैनिटीज लिया होता है, दोज हु आर इनटू पॉलिटिकल साइंस, उनका अलग होता है. अदरवाइज फॉर द विमेन इनको होता है कि हम लोग इन चीजों में क्यों पढ़े. तो हम लोग जो है वी आर नॉट विजिलेंट अबाउट आवर राइट्स, वी आर नॉट विजिलेंट अबाउट आउट. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप आर्टिकल को लर्न करना शुरू कर दो, आज से आप आर्टिकल 370 और 371 पर जो है थीसिस लिखना शुरू कर दो. नो, बट वी नीड टू नो दैट वी हैव सर्टेन राइट्स. वी need to participate in the government's machinery through elections by not only casting our votes but to the right person. And if you feel, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, यू कैन ऑल्सो यूज योर वॉट यू कैन से हुक्म का इक्का हम बोलते हैं ना हिंदी में, यू कैन यूज योर हुक्म का इक्का, दैट इज नोटा. इफ यू फील नो पार्टी, घर में बैठकर ये सोच के यार आज तो छुट्टी है चलो इलेक्शन है, यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू रेज योर वॉइस. व्हेन देयर इज सम कैंपेन, देयर इज सम प्रोटेस्ट, आप अपने आवाज को उठाओ. We cannot participate in the government machinery by becoming leaders ourselves, but definitely we can indirectly contribute. We can be vigilant whether the government जो यहाँ बैठकर ये बोला देखो गवर्नमेंट ने देखो क्या कर दिया, they are very bad, they have increased the price of the price अगर बढ़ा है तो आवाज उठाओ. We have the right to protest. वी हैव द राइट टू वॉइस अवर वॉइस. हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू, हम अपने मतलब कि सोशल मीडियाज के थ्रू, अलग मीडियाज के थ्रू अपनी आवाज उठा सकते हैं. रेज योर वॉइस. यू हैव 7 फंडामेंटल राइट्स एंड यू ऑल्सो हैव 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. बी विजिलेंट, पार्टिसिपेट, अंडरस्टैंड, एंड देन डेमोक्रेसी विल बी सक्सेसफुल. मतलब इसके अंदर अगर आपके लास्ट वाले में आता है दैट द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन विजिलेंट सिटीजन्स, तो आप इसमें ये लिख सकते हो मोर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट मशीनरी. मीन्स बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस, बाय कास्टिंग आवर वोट्स, बाय रेजिंग आवर वॉइस. ये 3 पॉइंट्स आपके इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं. मतलब हम अपनी आवाज उठा सकते हैं. हम भाई मैंने पिछली बार देखा था, मैंने बीजेपी को मतलब मैंने एक्स पार्टी को दिया था, आई एम सॉरी आई शुड नॉट टेक एनी नेम, मैंने एक्स पार्टी को दिया था, नहीं काम कर रहा था, तो मैं इस बार वोट नहीं दूंगा. दैट इज नॉट द रूल. चेंज, जैसे गांधी जी हैज सेड, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू बी इन अदर्स. वी नीड टू. तो अगर आपके क्वेश्चन लास्ट में ये वाला आ जाता है that the success of democracy depends upon the quality of its citizens या फिर vigilance of its citizens, उसके अंदर आपने ये points लिखने हैं. In this chapter you will be having a direct questions, मतलब indirect language आपका सिर्फ एक आएगा, मतलब वो है, वो भी indirect नहीं है, that is from the book only. The testimony, उसका नाम क्या, the success of democracy is very well seen in its testimony that more and more people want democracy. एक ये क्वेश्चन ऐसा टेढ़ा करके आता है,
बाकी में आपका डायरेक्टली आता हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी ऑफ विमेन, हाउ डज डेमोक्रेसी एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है। फर्स्ट वाला जो है दैट इज वेयर यू से अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, दैट कैन बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन। अगर आप में से किसी बच्चे को लर्न करने में तकलीफ होती है तो द की इज आप एक एक पॉइंट सबका लिखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर गेटिंग, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग 40 on 40, और मैं आई कैन एंश्योर दैट इन माय एकेडमी 99.9% स्टूडेंट्स हैव गॉट 100 on 100 आल्सो। तो ऐसा नहीं कि आप 100 नहीं ला सकते हो, 90 नहीं ला सकते, लेकिन अगर आपको लगता है मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, एक एक पॉइंट सबका लर्न करके रखिए। सेकेंडली आपका जो दूसरा है हाउ डज, मतलब कि इन डेमोक्रेसी उसका क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेटर सीन इन नॉन डेमोक्रेसी या स्पेसिफिकली इन डिक्टेटरशिप, उसमें आप लिखिए। देन थर्ड आपका आ सकता है हाउ डज इट इंश्योर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, या आपका आ सकता है हाउ डज इट प्रमोट डिग्निटी ऑफ विमेन एंड कास्ट इनइक्वालिटी। देन लास्ट आपका आ सकता है दैट हाउ कैन वी एंश्योर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें आप लोग जो हो ये लिख सकते हो बीइंग विजिलेंट, बाय टेकिंग आवर राइट्स, बाय फॉलोइंग आवर ड्यूटीज, ये हमें उसके अंदर लिखना है।